Dear friends, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for next lesson, that is from theodolite survey. So we will just browse the presentation and then we will start. So we will start with the lecture number 4. So welcome to lecture number 4. Here now we will go for method of theodolite traversing. इसके पहले लेक्चर में वी हैव सीन दैट हम किस प्रकार से वर्टिकल सर्कल या ओरिजिनल सर्कल पे से मेन स्केल और वर्नियर स्केल इसका रीडिंग हम लोग कैसे ले सकते हैं. एंड बाय यूजिंग द थियोडोलाइट वी आर एबल टू मेजर द एंगल in terms of degree, minute and second. So more accuracy we can maintain by using the theodolite for traversing. So earlier we have seen that the compass traversing was there. In the compass traverse, whatever the respective stations are there, we place the compass at each station and then measure the bearing of the next line. So with the help of compass, we are measuring the forebearing and back bearing of the compass. And then from that, we are trying to draw the traverse. So in that we have seen that there is a problem of closing error. तो कंपास सर्वे में हमारी कंपास की जो एक्यूरेसी है वो तो पहले हमारी कम है, आधा डिग्री की है. उसके बाद में फिर कंपास से लेते समय हमारे से कई गलतियाँ हो सकती है. So there are chances of personal error, instrumental error, and then because of the local attraction, because of the magnetic declination, there may be chances of error. When we are drawing the compass traverse on the drawing sheet, there is a closing error. So either way we can eliminate that closing error. But the more accurate method of traversing is theodolite. तो हम लोग theodolite का इस्तेमाल करके हॉरिजॉन्टल एंगल गिन के हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं. और किसी भी एरिया का सर्वे करना है तो ट्रैवर्स से हम लोग कवर कर सकते हैं उसको. और देन वी कैन हैव द परपेंडिकुलर एंड ऑल अदर ऑपरेशंस, and we can locate the various objects, or we can measure the area, or we can draw the plan of that particular alignment or area. So that is possible with the theodolite traversing. So here when we are doing the theodolite traversing, that is possible with the 3 different method. So here the traversing, in this lecture we are learning traversing, that is included angle method, deflection angle method, other is, and then fast needle method. So first of all we will just understand that the question is, can we measure the bearing of the survey line by using theodolite? कंपास से तो हम लोग बेयरिंग गिनते हैं, लेकिन थियोडोलाइट से हम लोग बेयरिंग गिन सकते हैं क्या? आंसर इज यस. सो दैट ऑल्सो वी आर लर्निंग इन दिस लेसन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग यूजिंग थियोडोलाइट. ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है, जिसके पहले हमने भी देखा है कि हमको अलग अलग सर्वे स्टेशन पॉइंट्स है, जैसा ये है स्टेशन पॉइंट 1 2 3 4 5 6, दिस टाइप ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर एंड दिस इज वन ऑफ द क्लोज बाउंड्री ऑफ द एनी कैंपस. किसी खेत का एरिया है या किसी लैंड का एरिया है या कोई प्लॉट का शेप ऐसा है या किसी कॉलेज का कैंपस ऐसा है और उसका शेप हमको बराबर लेंथ और एंगल हमको मेजर करने हैं इसका प्लान बनाने के लिए. सो वी हैव टू कैरी आउट द ट्रैवर्सिंग. तो अब ये हो गया हमारा क्लोज ट्रैवर्स, दिस इज क्लोज ट्रैवर, क्लोज पॉलिलाइन हो गई हमारी है. या फिर यदि हमको रोड की अलाइनमेंट, कैनाल की अलाइनमेंट, इस प्रकार का काम करना है तो वहाँ पे हमारा ओपन ट्रैवर्स रहेगा. सो यू हैव टू टेक दैट ऑल्सो. ओपन ट्रैवर्स का भी हमको ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा.
या फिर किसी बिल्डिंग का ड्राइंग यदि बनाना है हमको, या बिल्डिंग के ऑफसेट्स वगैरह लेना है और बड़ा कैंपस है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग के बाहर से भी हम लोग एक ट्रैवर्स घुमा सकते हैं थियोडाइट का, एंड देन वी कैन हैव द परपेंडिकुलर पॉइंट्स एट एवरी कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, and then we can draw that traverse on the drawing sheet also. So how that actually traversing is done? So first of all we will go for method 1, that is about included angle method. So here in the included angle method हम लोग क्या करने वाले हैं? So we are using the theodolite for measurement of the angle. Either way also we can measure the distance also. So हम लोग यदि हमको टैकोमेट्री आती है तो हम लोग डिस्टेंस भी थियोडाइट से गिन सकते हैं और हम लोग एंगल भी थियोडाइट से गिन सकते हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर एंगल गिनने वाला देखने वाले हैं. सो दिस इंक्लूडेड एंगल मेथड दैट इज यूज फॉर क्लोज ट्रैवर्स, यानी जैसा मैंने बताया कि वह बिल्डिंग के अराउंड में आपको ट्रैवर्स घुमाना है, या किसी गार्डन का लेआउट का आपको बाउंड्री का ड्राइंग बनाना है, किसी कैंपस का ड्राइंग बनाना है, किसी खेत का ड्राइंग बनाना है. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट हियर द इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन यू हैव टू प्लेस द थियोडाइट ऑन द सर्वे स्टेशन. थियोडाइट हमको सर्वे स्टेशन के ऊपर रखना होता है. सो वेयर इन सच केसेस वेन देर इज ए ओपन ग्राउंड एंड इट इज पॉसिबल दैट वी हैव टू प्लेस द थियोडाइट ऑन द स्टेशन, देन ओनली वी कैन यूज दिस मेथड. तो जनरली ओपन ग्राउंड के अंदर नए एरिया के लिए जहाँ पे हमको ट्रैवर्सिंग करना है, सो अराउंड द बिल्डिंग वी कैन यूज द क्लोज ट्रैवर्सिंग. नाउ हियर हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दैट. तो सबसे पहले तो हमको जो अलग अलग हमारे स्टेशन पॉइंट्स होंगे वो स्टेशन पॉइंट्स हमको यहाँ पे मार्क करने पड़ेंगे. सो हियर सपोज दिस इज आवर फर्स्ट स्टेशन ए, देन दिस इज स्टेशन बी, देन दिस इज सी, देन दिस इज डी एंड दिस इज ई. So I will write down in this fashion A, B, C, D and suppose this is not E, E. तो A, B, C, D, E ऐसे हमारे कुछ पॉइंट्स है और इसके बीच में सपोज हमारी एक ऐसी बिल्डिंग है. ये हमारी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के अराउंड यहाँ पर समझ लो ट्री है, यहाँ पे कुछ ट्री है, एंड नाउ दिस एरिया वी हैव टू ट्रैवर्स. तो सबसे पहले तो हमको हमारा थियोडाइट ए स्टेशन पे रखना पड़ेगा और बी स्टेशन के तरफ हमको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा. सो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए एंगल ए, फिर एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई. तो हमने कंपास ट्रैवर्स में देखा था कि हमको इंक्लूडेड एंगल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग थियोडाइट का इस्तेमाल इंक्लूडेड एंगल मेजर करने के लिए गिनने वाले. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैं ट्रैवर्स को भी, ये मेरा स्केच तैयार हो गया मेरे ड्राइंग रफ पेपर के ऊपर. सो आई विल प्रिपेयर द रफ स्केच ऑफ माई ट्रैवर्स. ये हो गया. अब मुझे सबसे पहले थियोडाइट कहाँ रखना पड़ेगा. सो आई विल प्लेस द थियोडाइट एट स्टेशन ए. यहाँ पर मैं थियोडाइट रखूँगा. सो फर्स्ट पोजीशन इज थियोडाइट एट स्टेशन ए रखूँगा मैं यहाँ पे. थियोडाइट एट स्टेशन ए रखा मैंने और अब मुझे ये एंगल गिनना है. तो मुझे हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ रिपीटेशन हमने पहले देखा है. सो हाउ वी कैन टेक द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिपीटेशन मेथड. तो उस मेथड का इस्तेमाल हमको यहाँ पर करना पड़ेगा. तो एक एंगल हम लोग फेस लेफ्ट से 6 रीडिंग आएंगे हमारे और फेस राइट से 6 रीडिंग आएंगे और उस पर से हमारा एक एवरेज एंगल निकलेगा. वो हमारा होगा थियोडाइट का एक एंगल, यानी ये वाला एंगल मिलेगा हमको. तो हमको हर एक एंगल के लिए जो हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ रिपीटेशन है उसका टेबल हमको बराबर भरना पड़ेगा और उससे हमारा एक एंगल निकलेगा सिर्फ. तो एक एंगल निकालने के लिए 12 ऑब्जर्वेशन रहेंगे. 6 ऑब्जर्वेशन विंडो ए और विंडो बी से 6 ऑब्जर्वेशन. सो लाइक वे एंड फेस लेफ्ट फेस राइट ऑल्सो यू हैव टू कैरी आउट. तो वो हमको करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अभी, बिकॉज वी आर सेइंग दिस मेथड इज द इंक्लूडेड एंगल मेथड, तो हमको इंक्लूडेड एंगल एक्यूरेटली गिनना है. तो ये एंगल हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिपीटेशन मेथड, इससे हम लोग गिनेंगे. हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिपीटेशन मेथड से हम लोग गिनने वाले हैं. तो यहां पर हमारा क्या होगा कि पहला आएगा फेस लेफ्ट
थियोडलाइट हमको पहले फेस लेफ्ट में रखना पड़ेगा और 1 2 3 बार रीडिंग हम लेंगे। तो 3 बार रीडिंग लेंगे तो ए विंडो के हमको 3 रीडिंग मिलेंगे और बी विंडो के 3 रीडिंग मिलेंगे और ये तीनों का एक मिलेगा। एक यहाँ पे ये 3 रीडिंग जो मिल गए हमको, ये तीनों का एक रीडिंग मिलेगा और ये तीनों का एक रीडिंग मिलेगा और ये दोनों का मिला के एक रीडिंग मिलेगा। ये रीडिंग हो जाएगा हमारा फेस लेफ्ट का। इसी प्रकार से फिर थियोडलाइट को फिर से ए पे ही रखना है और फिर हमारा पोजीशन रहेगा फेस राइट पोजीशन में रखना है। यानी थियोडलाइट का जो वर्टिकल सर्कल है वो टेलीस्कोप के राइट साइड में रहेगा। ऐसे पोजीशन में थियोडलाइट को सेट करके फिर हमको एंगल फिर से गिनना है। तो हम लोग फेस लेफ्ट से रीडिंग लेंगे 3 बार, तो ए विंडो के हमको 3 रीडिंग मिलेंगे और बी विंडो के 3 रीडिंग मिलेंगे। अब ये तीनों का एवरेज करेंगे तो एक रीडिंग यहाँ मिलेगा हमको और ये तीनों का एवरेज एक मिलेगा और फिर ये दोनों का एक मिलेगा। सो ये हो गया फेस लेफ्ट का और ये हो गया फेस राइट का और फिर ये दोनों का एवरेज करके एक फाइनल रीडिंग मिलेगा। ये एंगल हो जाएगा हमारा ए एंगल, एक एंगल मिलेगा हमको। तो इस प्रकार से हमको एक एंगल मेजर करने के लिए हमको ये सारा प्रोसीजर करना है। सो वी आर यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, सो देन वी कैन डिटरमाइन वन एंगल। तो एक एंगल के लिए हमने हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ रिपीटेशन करना है। तो सबसे पहले मैं प्रोसीजर हम लोग एक बार समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमारा थियोडलाइट जो है वो ई स्टेशन की तरफ देखेगा। सो फर्स्ट द थियोडलाइट ई स्टेशन की तरफ रहेगा और एंगल रहेगा हमारा 0 डिग्री का और अपर और लोअर स्क्रू दोनों भी टाइट रहेंगे, यानी इंस्ट्रूमेंट हिलेगा नहीं अभी। और इंडेक्स मार्क 0 0 मैच है हमारा, वर्नियर का 0, मेन स्केल का 0 मैच है। तो हमारा सेटिंग हो गया, यहाँ पे टेम्पररी एडजस्टमेंट हमने कर लिया। उसके बाद में फिर अपर स्क्रू को खोलना है। सो वी विल ऑपरेट अपर स्क्रू। अपर स्क्रू को खोलना है और थियोडलाइट को रोटेट करना है तो हमारा रीडिंग आ जाएगा। यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल आ जाएगा। यानी अपर स्क्रू को अपने को ओपन करना है और फिर क्लोज कर देना है। ओपन किया, एंगल आ गया मेरा, मेन स्केल मेरी घूम गई और फिर क्लोज कर दिया तो मेरा एक एंगल आ गया। अब अपने को रिपीटेशन मेथड के हिसाब से क्या करना है, तो ये पूरा एंगल घुमा के इंस्ट्रूमेंट को इधर लेके जाना है। तो फिर से बॉटम लेफ्ट लोअर स्क्रू ओपन करना पड़ेगा और इंस्ट्रूमेंट को घुमा के इनिशियल रीडिंग कर दो उसको। फिर अपर स्क्रू खोल के दूसरा रीडिंग आएगा। फिर यहाँ पे रीडिंग आने के बाद में लोअर स्क्रू खोल के उसको इनिशियल बना लो एंगल को, उस एंगल को, और फिर यहाँ पे तीसरा रीडिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 रिपीटेशन किया हमने। तो ए विंडो के 3 रीडिंग और सेम बी विंडो के 3 रीडिंग ऐसे रीडिंग आ जाएंगे और उसका एवरेज निकाल के फिर दोनों का एवरेज निकाल के एक रीडिंग आपको ए आएगा। तो इस प्रकार से हमको हर एक जगह पे हमको क्या करना है, एंगल मेजर करना है। सो एंगल ए बी सी डी और ई, ये पांचों भी एंगल हमको मेजर करना है। वो हो जाएंगे हमारे इंक्लूडेड एंगल। हर एक एंगल हमारा 12 एंगल का एवरेज रहने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ रिपीटेशन से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा एंगल डिग्री, मिनट और सेकंड में एक्यूरेटली इंक्लूडेड एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। फिर आपका थियोडलाइट आपको उठा के रखना पड़ेगा बी पे। फिर बी पे 1 2 3 यानी एक ही एंगल को 3 बार रिपीटेशन से हम लोग गिनेंगे। फिर सी पे भी वैसे ही करना है 3 बार, फिर डी पे भी 3 बार घुमाना है और वैसे ई पर भी करना है। तो सब एंगल आपके निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको लेंथ भी गिनने हैं। लेंथ ए बी सी सी डी डी ई और ई ए, तो पांचों भी साइड्स जो है इसकी वो भी हमको मेजर करना पड़ेगा। तो हमारे पास में लेंथ भी है और हमारे पास में एंगल भी है, और ये इंक्लूड एंगल यदि हमको मिलता है तो हम लोग इस प्रकार का क्लोज ट्रैवर हमारे ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल मेथड। लेकिन इसके अंदर भी यदि थियोडलाइट से एंगल गिनते समय या फिर लेंथ गिनते समय, लेंथ तो हम लोग टेप से गिनेंगे, तो उस समय भी उसके अंदर भी एरर हो सकती है। तो उसके वजह से भी ऐसे ट्रैवर्स प्लॉट करते समय क्लोजिंग एरर आपकी आ सकती है, रिमेंबर।
सो व्हेन यू प्लॉट दिस टाइप ऑफ ट्रैवर्स अगेन देयर इज चांस ऑफ क्लोजिंग एरर बिकॉज ऑफ दैट एंगल आपका एक्यूरेट रहेगा, लेकिन लेंथ में आपको यदि गलती हो गई आपकी मेजरमेंट में, सो अगेन देयर मे बी चांस ऑफ क्लोजिंग एरर. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट वेयर वी कैन प्लॉट द क्लोज ट्रैवर्स. अब ये ट्रैवर्स पूरा हो गया, तो अभी हर एक सर्वे लाइन के लिए जैसा ये बिल्डिंग का कॉर्नर लोकेट करना है, तो मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर आपसे ड्रॉप करना पड़ेगा. तो जितने भी बिल्डिंग के कॉर्नर्स है उसके लिए क्रॉस टॉप का इस्तेमाल करके आपको ये परपेंडिकुलर पॉइंट्स जो है हर एक कॉर्नर से परपेंडिकुलर पॉइंट आपको ये सर्वे लाइन पे ड्रॉप करना है, और उसके जो भी रिस्पेक्टिव ऑफसेट होंगे वो ऑफसेट और उसका चेनेज. तो मुझे अभी ये सर्वे लाइन के लिए यहाँ से इतना डिस्टेंस यानी चेनेज और ये ऑफसेट, फिर यहाँ से इतना चेनेज और ये ऑफसेट, यहाँ से इतना चेनेज और ये ऑफसेट, यहाँ से इतना चेनेज और ऑफसेट, यहाँ से इतना चेनेज और ऑफसेट. तो हर एक लाइन के लिए मुझे फिर से चेनेज एंड ऑफसेट ये भी नोट करना पड़ेगा फिर हर एक पॉइंट के लिए. तो ऐसे वाले जो टेबल है चेनेज और ऑफसेट, ये वाले जो टेबल है ये टेबल भी मुझे हर एक लाइन के लिए बनाना पड़ेगा. पहले लाइन के लिए चेनेज और ऑफसेट, फिर दूसरे लाइन के लिए चेनेज ऑफसेट, ऐसा हर एक लाइन के लिए चेनेज और ऑफसेट के भी मुझे ऐसे टेबल बनाने पड़ेंगे. तो आपके पास में ये 5 एंगल, ये 5 लेंथ ऑफ द साइड्स और हर एक लाइन के लिए चेनेज और ऑफसेट, इतना डाटा मिलेगा और इसके जरिए हम लोग थियोडाइट ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं. ये ऐसा प्रैक्टिकल हमको करना पड़ता है थियोडाइट ट्रैवर्सिंग के लिए. सो दैट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग बाय यूजिंग थियोडाइट. अनदर मेथड इज ऑल्सो देयर. जब हमारा ओपन ट्रैवर्स रहता है, क्लोज ट्रैवर्स नहीं रहता है, तो ओपन ट्रैवर्स के लिए हमारे पास में ये एक मेथड है. तो यहाँ पे हमको ओपन ट्रैवर्स के लिए कैसा करना है, तो हमारा समझ लो रोड का सर्वे करना है. तो रोड का सर्वे करने के लिए रोड तो ओपन ही रहेगा, कोई क्लोज तो रहने वाला है नहीं वहाँ पे. या कैनाल की अलाइनमेंट फिक्स करनी है, या रेलवे अलाइनमेंट फिक्स करनी है, या इस प्रकार से हमको किसी श्योर लाइन का सर्वे करना है, या फिर किसी रिवर के साइड एरिया का सर्वे करना है. तो ऐसे जगह पे आपका क्लोज ट्रैवर्स नहीं रहेगा, ओपन ट्रैवर्स रहेगा. तो ओपन ट्रैवर्स में भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल के बजाय डिफ्लेक्शन एंगल गिनेंगे. तो वो डिफ्लेक्शन एंगल गिनने का भी काम हम लोग थियोडाइट से कर सकते हैं. तो ओपन ट्रैवर्स कैसा करेंगे, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग समझ लो यहाँ से ये एक स्टेशन हो गया यहाँ पर ए, ये दूसरा हो गया बी, फिर यहाँ से तीसरा हो गया यहाँ पर सी, फिर ये चौथा हो गया डी, इस प्रकार से ये पांचवा हो गया ई. तो जैसा जैसा आपका रोड जा रहा है वैसा वैसा रहेगा. इसकी लंबाई जो भी है वो आपको गिननी पड़ेगी. सो ए बी सी डी ई इस प्रकार का ये आपका हो गया ओपन ट्रैवर्स. अब ओपन ट्रैवर्स में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको एंगल गिनना है. सो यहाँ पर भी फिर से हमको एंगल इस्तेमाल कौन सा करना है, हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिपीटेशन मेथड. लेकिन हमको यहाँ पे एंगल कौन सा गिनना है, वी हैव टू मेजर द डिफ्लेक्शन एंगल. तो मैं डिफ्लेक्शन एंगल यहां पर गिन रहा हूं. तो डिफ्लेक्शन का एंगल का मतलब क्या हो गया कि मेरी पहले सर्वे लाइन है ए बी, तो ए बी लाइन को मैंने यदि आगे एक्सटेंड किया तो ये लाइन के बाजू में फिर ये लाइन इधर जा रही मेरी, तो इसका मतलब ये लाइन मेरी डिफ्लेक्ट हो गई इतने एंगल से, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए. सो आई रिक्वायर दिस एंगल थीटा. यानी ए बी सर्वे लाइन को आगे एक्सटेंड करने के बाद में उसका जो एंगल बन रहा है नेक्स्ट लाइन के साथ में, ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन एंगल. सो आई हैव टू मेजर दिस डिफ्लेक्शन एंगल. ये डिफ्लेक्शन एंगल मुझे यहाँ पर मेजर करना पड़ता है. तो ये एंगल मुझे फिर से हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ रिपीटेशन से गिनना पड़ेगा हमको. तो अब इसके लिए हमको डिफ्लेक्शन एंगल यदि चाहिए तो फिर से हमारा प्रोसीजर क्या है, क्योंकि हमारा ये ओपन ट्रैवर्स है, तो सबसे पहले तो हम लोग लेंथ गिन लेंगे हम लोग. सो ए बी बी सी सी डी डी ई ऐसा जो भी है वो सारी लेंथ आपको पहले गिन लेना है. सो लेंथ यू हैव मेजर्ड. अब हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल गिनना है. तो डिफ्लेक्शन एंगल गिनने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे ए पे पहले लाइन के लिए हमको इसका बेयरिंग गिनना पड़ेगा. रिमेंबर फॉर फर्स्ट लाइन वी हैव टू मेजर द बेयरिंग. तो स्टेशन ए पे मैं यदि थियोडाइट रखता हूं तो मुझे यहाँ पे बेयरिंग गिनना पड़ेगा.
तो बेरिंग कैसा गिनेंगे फिर? तो आपको ए स्टेशन के ऊपर आपने थियोडलाइट को रख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने थियोडलाइट रख दिया, दिस इज स्टेशन ए। तो मेरा जो थियोडलाइट है, ये थियोडलाइट मुझे फोकस करना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। सो दिस इज माय नॉर्थ। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा कंपास लूंगा, एक डब्बी वाला कंपास, जो डब्बी वाला कंपास होता है हमारा ऐसा, ये ऐसा छोटा जो कंपास होता है हमारा डब्बी वाला, ये डब्बी वाला कंपास हमको वो थियोडलाइट पे रखना है, थियोडलाइट के बीच में, और वहां पे फिर थियोडलाइट को ऐसे फोकस करना है ताकि कंपास की सुई जिधर दिखा रही है उधर ही हमारा टेलीस्कोप रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जीरो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ थियोडलाइट का 0 डिग्री, वर्नियर का और मेन स्केल का दोनों भी सेट करेंगे। यानी थियोडलाइट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहा है और वर्नियर का और मेन स्केल का 0 मैच है, और टेलीस्कोप देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपने पहले थियोडलाइट को सेट कर दिया। और उसके बाद में फिर आपकी जो ए बी लाइन जा रही है इधर, तो फिर आपको फिर से अपर स्क्रू खोलना पड़ेगा, अपर स्क्रू खोल के रोटेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, तो ये वाला रीडिंग आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा थीटा, यानी ये बेरिंग हो जाएगा लाइन ए बी का, दिस इज लाइन ए बी। तो हम लोग थियोडलाइट का इस्तेमाल करके लाइन का बेरिंग भी गिन सकते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो फर्स्ट वी हैव टू सेट द 0 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन by using some mini compass placed inside the telescope frame, theodolite frame, and then by loosening the upper screw we can rotate the telescope and then focus towards the point B, so we will get the first bearing of this line AB. तो मुझे पहले AB लाइन का bearing मिल जाएगा, so I will take the bearing of line AB. तो पहला ऑब्जर्वेशन मेरा लाइन AB का bearing मिल जाएगा अपने को। उसके बाद में फिर बी पे मुझे डिफ्लेक्शन एंगल गिनना है। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर मेरा इंस्ट्रूमेंट जाऊंगा मैं ले जाके बी पे। तो बी पे कैसा होने वाला है देखिए, अब यहाँ पे मुझे बी स्टेशन पे थियोडलाइट रखना है और मेरा ए स्टेशन तो इधर है, सो दिस इज ए और ये बी है। तो मैं बी पे इंस्ट्रूमेंट रखूंगा और वो फोकस करूंगा उसका ए के तरफ। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा ए के तरफ जब फोकस करेगा तब हमारा 0 का एंगल मैच कर लेना है, हमको 0 एंगल मैच कर लेना है। तो वर्नियर का इंडेक्स और मेन स्केल का इंडेक्स 0 मैच हो गए और थियोडलाइट हमारा देख रहा है ए पॉइंट की तरफ। और अब मुझे आगे वाली जो लाइन है BC, इसका डिफ्लेक्शन एंगल गिनना है। तो मुझे ये जो थियोडलाइट है ना, इसको ट्रांजिट करना पड़ेगा, यानी 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा ऐसा। तो ये 180 डिग्री घुमाने से टेलीस्कोप मेरा इधर हो जाएगा, टेलीस्कोप का मुंह। सो आई हैव मेक द ट्रांजिट ऑफ द थियोडलाइट, यानी टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमा दिया मैंने। तो टेलीस्कोप इधर देखने के बजाय अभी इधर देखने लग गया। और अब मुझे फिर यहाँ से ये वाला एंगल अपर स्क्रू को लूज करना है और सी पॉइंट की तरफ फोकस करना है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ये एंगल मिलेगा, दिस इज माई डिफ्लेक्शन एंगल। अब यदि आपको इसको रिपीटेशन करना है तो आप रिपीटेशन कर सो, फिर से उसको क्लॉकवाइज घुमा के इनिशियल रीडिंग करो, इसको फिर घुमाओ, फिर इनिशियल रीडिंग करो, फिर घुमाओ। तो ऐसे 3 रीडिंग फेस लेफ्ट से और 3 रीडिंग फेस राइट से, तो 6 रीडिंग आएंगे ए विंडो बी विंडो के। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल गिन सकते हैं। तो ये डिफ्लेक्शन एंगल आपको बी पे गिनेंगे आप, फिर आपको वैसी प्रकार से सी पे भी करना पड़ेगा। तो सी पे आपको ये वाला एंगल लगेगा इतना, फिर डी पे जाएंगे तो डी पे इसको आगे एक्सटेंड करने के बाद में ये वाला एंगल लगेगा। तो हर जगह पे आपको जो प्रीवियस सर्वे लाइन है उसको एक्सटेंड करने के बाद में उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, वो डिफ्लेक्शन एंगल हमको गिनना है। तो ये डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग इस प्रकार से गिनेंगे। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या गिनना है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो पहले हम लोग लेंथ गिनेंगे सब लाइन की, फिर पहले लाइन का बेयरिंग गिनेंगे, फिर बाद में सब लाइन का डिफ्लेक्शन एंगल गिनेंगे। एंड देन बाय यूजिंग दैट डाटा ये आप ट्रैवर्स को प्लॉट कर सकते हो। क्योंकि आपको इसके जो एंगल मिलेंगे वो सारे एंगल अपने को मिलेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड में, इसलिए आपका एंगल एक्यूरेट होगा। एंड देन यू कैन ड्रा द एक्यूरेट ओपन ट्रैवर्स। सो इसके अंदर वेरिएशन आने के अलाइनमेंट के चांसेस कम रहते हैं। सो दैट इज द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर
open traverse by using deflection angle method, and the instrument is theodolite. Then another method is also there. This is called as fast needle method. अब ये फास्ट नीडल मेथड बोले तो यहाँ से हम लोगों को कंपास के जैसा हर एक लाइन का बेयरिंग गिनना है. सो वी हैव टू मेजर द बेयरिंग ऑफ ईच सर्वे लाइन. लेकिन फास्ट नीडल मेथड से करना है हमको यहाँ पे, इसलिए हमको हर बार जीरो को सेट करके नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सेट करके हर बार ऐसा नहीं करना है. सो दिस इज डिफरेंट. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा समझ लो ए पॉइंट है हमारा यहाँ पर. सो दिस इज स्टेशन ए. तो मैं यहाँ पर थियोडलाइट सेट करूँगा. थियोडलाइट सेट करने के बाद में उसका वर्नियर का और मेन स्केल का जीरो भी मैच कर दूंगा, और मैच करके मैं उसको फोकस करूँगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ. तो छोटा छोटा कंपास मुझे रखना है वो वाई फ्रेम के बीच में, और नॉर्थ डायरेक्शन को देख के टेलीस्कोप को उधर कर देना है. सो माय टेलीस्कोप इज ऑब्जर्विंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड एंगल इज सेट टू 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड. तो ये एंगल आपका इनिशियल एंगल सेट हो गया, और थियोडलाइट आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहा है. और अभी आपको बी स्टेशन है यहाँ पर, समझ लो दिस इज स्टेशन बी. तो ये आपकी सर्वे लाइन हो गई ए बी. तो जैसा हमने इसके पहले प्रैक्टिकल में किया था कि हमको सबसे पहले तो लाइन का बेयरिंग गिनना है, तो वैसे ही अपन को पहले लाइन का बेयरिंग गिनना है. लेकिन इसके आगे हमको फास्ट नीडल मेथड इस्तेमाल करना है. तो अब क्या करेंगे फिर, तो अब मेरा स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट है ए पर, और मैंने नॉर्थ की तरफ फोकस किया 0 डिग्री. अब मुझे अपर स्क्रू को खोलना है. सो अपर स्क्रू खोलूंगा मैं तो मेरी मेन स्केल घूमेगी, और मेन स्केल घूमने के बाद में मुझे ये एंगल मिल जाएगा. तो यहाँ पे ये वाला एंगल मुझे ए विंडो और बे विंडो दोनों से रिकॉर्ड कर लेना है, ए और बी से रिकॉर्ड कर लेना है. सो आई विल गेट दिस एंगल. अब ये एंगल मिलने के बाद में उसका अपर और लोअर स्क्रू जो है, अपर स्क्रू और लोअर स्क्रू दोनों को भी लॉक कर दो, दोनों को भी लॉक कर दो. तो जो एंगल रहेगा ना वो एंगल कितना है समझ लो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल आ गया हमारा 48 डिग्री का. तो 48 डिग्री का एंगल के ऊपर आपका थियोडलाइट लॉक हो जाएगा. तो ये होने के बाद में फिर ये थियोडलाइट यहाँ से उठा के आपको बी पे रखना है. सो वी विल ट्रांसफर द थियोडलाइट एट बी. अब बी पे रखने के बाद में अपने को क्या करना है कि आपका जो थियोडलाइट है उसके ऊपर एंगल कितना है 48 डिग्री का. और 48 डिग्री के बाद में आपके दोनों भी स्क्रू लॉक है. और अब थियोडलाइट आपका देखेगा किधर, तो आपको थियोडलाइट का मुंह उल्टा रखना है ए की तरफ. तो थियोडलाइट वी हैव टू सेट एट बी स्टेशन, वॉचिंग टुवर्ड्स ए के तरफ लगाना है उसको, और उसके ऊपर एंगल रहेगा 48 डिग्री का. तो लोअर स्क्रू खोल के एंगल 48 डिग्री रखना है, और उसको मैच करना है ए पॉइंट की तरफ. तो टेलीस्कोप आपका ए के तरफ देखेगा. अब ऐसा होने के बाद में ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है और आपका अगला पॉइंट सी यहाँ पर है. तो आपको बीसी लाइन का भी बेयरिंग चाहिए. पहले तो आपने ए बी का गिन लिया, अब आपको बीसी का चाहिए. यानी बीसी का बोले तो ये नॉर्थ यदि है बी पे, तो हमको ये इतना बड़ा एंगल चाहिए बीसी के लिए. तो ये एंगल कैसा गिनेंगे, तो अभी आपका थियोडलाइट बी से ए की तरफ देख रहा है, और उसके ऊपर एंगल है सेट 48 डिग्री का. अब मैं उसको ट्रांजिट करूंगा 180 डिग्री से, टेलीस्कोप को रोटेट करूंगा. तो मेरा टेलीस्कोप हो जाएगा इधर, और इधर होने के बाद में उस पर एंगल कितना रहेगा 48 डिग्री का. और अब मैं अपर स्क्रू खोलूंगा, अपर स्क्रू खोल के घुमाऊंगा तो मुझे आगे का एंगल मिल जाएगा. यानी 48 में आगे का एंगल और बढ़ जाएगा. तो सी पॉइंट का पूरा इतना एंगल मिल गया मुझे ये वाला. सो आई गेट द बियरिंग ऑफ बी सी. इस प्रकार से फिर आगे के लाइन के लिए भी करना है. तो फिर मैं सी पे क्या करूंगा, अब मेरा एंगल ये 48 डिग्री से समझ लो यहाँ पे हो गया 82 डिग्री टोटल एंगल. तो अब मैं इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ से, अब मेरा पॉइंट डी मेरा समझ लो इधर है, ये पॉइंट डी है. तो मुझे अभी ये इंस्ट्रूमेंट उठा के यहाँ पे कहाँ पे रखना है, सी पे रखना है. तो मैं टेलीस्कोप थियोडलाइट सी पे रखूँगा. सी पे थियोडलाइट रखने के बाद में उसकी डायरेक्शन में उल्टी करूँगा बी के तरफ. पिछले वाले पॉइंट को देखना है, और पिछले वाले पॉइंट पे देखते समय एंगल कितना रखना है 82 डिग्री का. यानी मेरे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग रहेगा 82 डिग्री का, और इंस्ट्रूमेंट फोकस करेगा पिछले वाले बी पॉइंट को.
और ऐसा करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांजिट करना है। तो टेलीस्कोप 180 डिग्री से घूम जाएगा। तो 180 डिग्री घूमने से आपका टेलीस्कोप इधर देखने लगेगा। तो इंस्ट्रूमेंट इधर देखेगा, थियोडलाइट की डायरेक्शन ये है और एंगल उसके ऊपर है 82 डिग्री का, यानी ये नॉर्थ के साथ में ये वाला एंगल 82 डिग्री का। और अब आपको फिर से अपर स्क्रू खोल के ये एंगल आगे बढ़ाना है डी के तरफ। तो आपको यहां से इतना बड़ा एंगल मिलेगा, यानी हर बार आप नॉर्थ डायरेक्शन से ये एंगल ही गिन रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन से बेरिंग ही गिन रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने थियोडलाइट 0 पे एक ही बार सेट किया था शुरू में, बाद में फिर 48 पे किया, बाद में फिर 82 पे किया, और इस प्रकार से हर बार पिछले पॉइंट को फोकस किया, फिर थियोडलाइट को ट्रांजिट किया और फिर आगे का रीडिंग लिया। फिर डी पे रखेंगे तो डी पे थियोडलाइट सेट करो, सेट करने के बाद में उसका फोकस करो सी के तरफ और एंगल रख दो, जो भी आया होगा आगे का समझ लो एंगल आ गया 122 डिग्री का, तो एंगल 122 डिग्री का रहेगा। और 122 का रहने के बाद में फिर ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रांजिट करो तो थियोडलाइट की डायरेक्शन इधर बन जाएंगी ऐसी, और फिर इधर की जो लाइन होगी ई पॉइंट वगैरह होगा तो उसके लिए ये वाला आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको फिर से नॉर्थ डायरेक्शन से इतना बड़ा एंगल मिलेगा। तो हर बार हमको नॉर्थ डायरेक्शन से ही एंगल मिल रहा है, तो एंगल को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारी नीडल हो गई यहाँ पर फास्ट नीडल, यानी नीडल एक ही बार हमने नीडल की तरफ फोकस किया था, अगली बार में उसको ट्रांजिट करके पिछले पॉइंट को फोकस करके ट्रांजिट करके आगे का रीडिंग, पिछले पॉइंट को फोकस करके ट्रांजिट करके आगे का रीडिंग, ऐसा हम लोग हर बार आगे आगे का रीडिंग गिनते गए। तो इसलिए इस मेथड को बोला जाता है फास्ट नीडल मेथड या फिर मैग्नेटिक बेरिंग मेथड, क्योंकि हर लाइन का आपको पहले ए बी का मैग्नेटिक बेरिंग मिला, फिर बी सी का भी मैग्नेटिक बेरिंग मिला क्योंकि नॉर्थ से एंगल मिला हमको, फिर सी डी का भी हमको नॉर्थ से एंगल मिला यानी मैग्नेटिक बेरिंग मिला, फिर डी ई का भी आपको मैग्नेटिक बेरिंग मिला। तो हर लाइन का आपको मैग्नेटिक बेरिंग ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग फास्ट नीडल मेथड ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए। ये वाली मेथड आपको ओपन ट्रैवर्स के लिए अडॉप्ट करना है तो ओपन ट्रैवर्स के लिए कर सकते हो आप, या फिर आप क्लोज ट्रैवर्स के लिए करना है तो क्लोज ट्रैवर्स के लिए भी कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको एंगल निकाल सकते हैं आप, इंक्लूडेड एंगल, या फिर आपको बेरिंग भी मिल रहा है हर एक सर्वे लाइन का। सो दैट इज फास्ट नीडल मेथड वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द ईच सर्वे लाइन यूजिंग थियोडलाइट एंड दैट एंगल्स आर इन डिग्री मिनट सेकंड। तो इस प्रकार से इंक्लूडेड एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड एंड फास्ट नीडल मेथड, ये तीनों मेथड से हम लोग ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। अब ऐसा ट्रैवर्सिंग करने में जो हमको ऑब्जर्वेशन हमारे पास में मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहा है, इसके पहले भी हमने देखा कि मुझे सबसे पहले मिल रहा है लेंथ, मुझे मिल रहा है लेंथ यानी सर्वे लाइन की जो लेंथ है, लेंथ ए बी बी सी सी डी जो भी है वो लेंथ मैं मेजर कर रहा हूं, और दूसरा मैं मेजर कर रहा हूं बेयरिंग, और तीसरा मैं मेजर कर रहा हूं इंक्लूडेड एंगल। तो जब हम लोग थियोडलाइट ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो हम लोग लाइन की लंबाई गिन रहे हैं, लाइन का बेयरिंग गिन रहे हैं और इंक्लूडेड एंगल भी गिन रहे हैं। तो इतना डाटा अपने पास में है। अब इसका इस्तेमाल करके यदि आप ड्राइंग को ट्रैवर्स को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो फिर से चांसेस है आपके पास कि आपके इसके अंदर क्लोजिंग एरर आ सकती है, यानी ट्रैवर्स का पहला पॉइंट प्लॉट करते करते जाएंगे तो आखिरी के पॉइंट पे ऑटोमेटिक मैच नहीं होगा, थोड़ी सी गैप आ जाएगी तो क्लोजिंग एरर आ गई। तो वो क्लोजिंग एरर हमको नहीं चाहिए, तो हमको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके बजाय हम लोग थियोडलाइट ट्रैवर्स को प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वी आर यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो जैसा एक्स और वाई हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, इस प्रकार से हर एक लाइन का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो वो जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग अभी यहां पे देखने वाले हैं। तो उसको बोला जाता है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो यहां पे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को हम लोग ऐसा समझेंगे यहां पे, सो हियर द लैटिट्यूड ऑफ द सर्वे लाइन इज द कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड पैरेलल टू द मेरिडियन डायरेक्शन। मेरिडियन डायरेक्शन बोलो तो यहां पे नॉर्थ साउथ है हमारी, तो नॉर्थ डायरेक्शन को जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको बोलेंगे हम लोग लैटिट्यूड, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो जाएगा डिपार्चर। जैसा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने एक जो फोर्स है
उसको अलॉन्ग द एक्स रिजॉल्व किया और वाई रिजॉल्व किया, तो एक्स कंपोनेंट हो गया और वाई कंपोनेंट हो गया। वैसा यहाँ पे हम लोग विथ नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन को पैरेलल है वो लैटिट्यूड, और उसको जो परपेंडिकुलर है वो डिपार्चर, ऐसे दो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं हर एक सर्वे स्टेशन के। सो ईच सर्वे स्टेशन वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, एंड दे आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट स्टेशन पॉइंट। अब उसको निकालने के लिए हमको क्या क्या लगेगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सो सपोज दिस इज माय नॉर्थ डायरेक्शन, ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन है मेरी, और ये मेरा स्टेशन ए है, और यहाँ पे मेरी पॉइंट लाइन बी है। सो लाइन ए बी इज दिस वन, सो दिस इज माय सर्वे लाइन। अब ये सर्वे लाइन की लंबाई समझ लो है 38 मीटर, और ये आला एंगल है मेरा 35 डिग्री का। तो मेरे पास में एंगल है और लेंथ है, तो ये लेंथ को मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। यानी ये जो लाइन है मेरी लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी है इसका मैं अलॉन्ग द नॉर्थ डायरेक्शन कंपोनेंट निकाल सकता हूँ, तो वो हो जाएगा 38 cos 35 डिग्री। सो दिस इज L cos थीटा, यानी ये थीटा है, तो थीटा इज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, रिमेंबर। और ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा L sin थीटा। तो हर एक सर्वे लाइन की लंबाई मालूम है और उसका हमको बेयरिंग मालूम है नॉर्थ डायरेक्शन से, तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन को पैरेलल कंपोनेंट और उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये दोनों भी निकाल सकते हैं। तो ये लाइन के लिए इतना डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन के ऊपर है और इतना डिस्टेंस ईस्ट के ऊपर है, तो L cos थीटा और L sin थीटा ये मेरे हो गए कोऑर्डिनेट। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन को पैरेलल कंपोनेंट है मेरा ये सर्वे लाइन का, वो हो गया हमारा लैटिट्यूड L इज इक्वल टू L cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो गया L sin थीटा विच इज डिपार्चर इज इक्वल टू L sin थीटा। अब ये जो लैटिट्यूड और डिपार्चर है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि होगी नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से, तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और साउथ डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव मानते हैं। उसी प्रकार से ये ईस्ट डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं और यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हैं। जैसा एक्स और वाई, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई निगेटिव होता है। तो इसी प्रकार से हमारा ऊपर नॉर्थ पॉजिटिव है, साउथ निगेटिव है, ईस्ट पॉजिटिव है, वेस्ट निगेटिव है। अब लाइन हमारी यदि पहले क्वाड्रेंट में है तो उसका नॉर्थ कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ गया और ईस्ट कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ गया, तो हमारे लैटिट्यूड की साइन पॉजिटिव रह सकती है नॉर्थ रहेगा तो, और साउथ रहेंगी तो निगेटिव रह सकती है। यदि लाइन हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि ये नॉर्थ साउथ का कंपोनेंट जो है वो निगेटिव आएगा और ईस्ट का आएगा पॉजिटिव। तो लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल टू नॉर्थ डायरेक्शन रहता है ये वाला, तो लैटिट्यूड निगेटिव आएगा और डिपार्चर पॉजिटिव आएगा। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में यदि जाएंगे तो ये लैटिट्यूड है यानी साउथ नॉर्थ साउथ को पैरेलल वाला, तो ये निगेटिव आएगा लैटिट्यूड, और डिपार्चर जो है वो पॉजिटिव, सॉरी डिपार्चर भी निगेटिव आएगा, डिपार्चर भी निगेटिव आएगा हमारा, क्योंकि डिपार्चर वेस्ट की तरफ है अभी। और यदि लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे फिर लैटिट्यूड उसका फिर से प्लस आएगा, लैटिट्यूड प्लस आएगा और डिपार्चर इधर मेरा निगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से लाइन आपकी कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से लैटिट्यूड और डिपार्चर के साइन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन प्लस लैटिट्यूड पॉजिटिव रहेगा, साउथ रहेगा तो लैटिट्यूड निगेटिव रहेगा, ईस्ट रहेगा तो लैटिट्यूड सॉरी डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा और वेस्ट रहेगा तो डिपार्चर निगेटिव रहेगा। तो लैटिट्यूड का साइन पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नॉर्थ साउथ, और डिपार्चर का साइन पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्वे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। और इसको कैलकुलेट करने की हमको क्या चाहिए, लाइन की लेंथ और लाइन का बेयरिंग। सो आई रिक्वायर लेंथ एंड बेयरिंग। तो ये दोनों भी तो हमने अभी ऑब्जर्व किए थियोडाइट से। सो थियोडाइट से यदि हम लोग बेयरिंग गिनते हैं और हमको यदि लाइन की लंबाई मालूम है तो लैटिट्यूड और डिपार्चर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही हमको हर एक सर्वे लाइन के लिए करना पड़ता है व्हेन वी वांट टू प्लॉट द क्लोज ट्रैवर्स। अब ये जो कोऑर्डिनेट है तो हर बार क्या हो जाएगा कि मेरा यदि मैंने यहाँ से ए स्टेशन से स्टार्ट किया और मेरी बी तक मैं गया,
तो मेरी ए बी लाइन जो है इसके लिए मेरा ये रहेगा नॉर्थ कंपोनेंट और ये रहेगा ईस्ट कंपोनेंट। सो दिस इज ईस्ट और ये वाला नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट। फिर यहाँ से आगे जाऊँगा मैं तो ये सी स्टेशन यदि यहाँ पर है तो सी के लिए ये मेरा रहेगा वर्टिकल वाला रहेगा मेरा नॉर्थ, सॉरी साउथ रहेगा क्योंकि नीचे आ रहा हूँ मैं, और इधर जा रहा हूँ मतलब तो ये ईस्ट है। फिर यहाँ से मैं यदि और इधर आता हूँ तो ये वाला है, यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट नीचे आ रहा है यानी हो गया साउथ, और इधर आ रहा है बोले तो वेस्ट। सो दिस इज इस डायरेक्शन उसकी ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन अप है, इसकी डायरेक्शन राइट है। और फिर ये आखिरी का रहेगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट रहेगा वेस्ट और ये वाला कंपोनेंट रहेगा नॉर्थ। तो मैंने ए स्टेशन से शुरू किया तो मैं उत्तर की तरफ इतना गया, फिर पूरब की तरफ इतना गया तो बी पे पहुंच गया, फिर बी पे से मैं पूरब की तरफ इतना गया और साउथ की तरफ इतना आया तो सी पे पहुंच गया, फिर सी से मैं साउथ की तरफ इतना गया और वेस्ट की तरफ इतना गया तो मैं डी पे पहुंच गया, और डी से मैं फिर वेस्ट की तरफ इतना गया और नॉर्थ की तरफ ऊपर गया तो मैं ए पे पहुंच जाऊंगा। तो इस प्रकार से ए बी सी डी हर एक पॉइंट के लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैटिट्यूड बोलो तो वर्टिकल कंपोनेंट, रिमेंबर नॉर्थ साउथ कंपोनेंट ये वाले, ये सारे वर्टिकल वाले लैटिट्यूड है, और हॉरिजॉन्टल वाले जो है वो डिपार्चर है। लेकिन आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि जब मैंने ए से शुरुआत किया और मेरा ये वाला क्लोज ट्रैवर्स है, ये वाला ऐसा क्लोज ट्रैवर्स है मेरा, तो क्लोज ट्रैवर्स में नॉर्थ ऊपर गया मैं, यहाँ पे साउथ नीचे आया, फिर यहाँ पे साउथ नीचे आया और फिर यहाँ पे नॉर्थ ऊपर गया तो मैं जगह पे पहुंच गया यहाँ पे। यानी क्या है कि सम ऑफ द लैटिट्यूड इज ऑलवेज 0 एंड सम ऑफ द डिपार्चर, यानी यहां से इधर गया मैं, फिर इधर गया और यहां से इधर वापस आ गया और इधर वापस आ गया, यानी डिपार्चर भी नील हो गया आपका। सो हियर इन द क्लोज ट्रैवर्स यू हैव टू सी दैट द टोटल ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर एट एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन आर नोन एज द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, और हर एक लाइन के लिए वो जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। तो यहां पे अब क्या हो गया कि मैंने कोई स्टेशन ए है, तो मेरा स्टेशन ए है और ए यहां पर ये बी है मेरा, ये सर्वे लाइन हो गई मेरी ए बी। तो ए बी के लिए ए का बेयरिंग मुझे मालूम है थीटा, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। ये हो गया मेरा एल कॉस थीटा और ये हो गया मेरा एल साइन थीटा। तो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट ए पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो इतना डिस्टेंस वर्टिकल और इतना हॉरिजॉन्टल। तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे हो जाएंगे ये वाले एल कॉस थीटा कॉमा एल साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा लैटिट्यूड और ये हो जाएगा डिपार्चर। तो इसका मतलब यह है कि जो आगे का सर्वे स्टेशन है, ये बी पॉइंट के लिए जो पीछे की लाइन है ए बी, यानी प्रीवियस लाइन का जो भी लैटिट्यूड और डिपार्चर है वो बोले तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी प्रीवियस लाइन का जो लैटिट्यूड डिपार्चर है वो बी पॉइंट का डिपार्चर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर बी के लिए सी पॉइंट का निकालेंगे तो ये हो गया उसका डिपार्चर, ये हो गया लैटिट्यूड, और ये सी पॉइंट के लिए ये बी सी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर बोले तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो एल एंड डी। सो हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विथ रेफरेंस टू प्रेसीडिंग पॉइंट, यानी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट is called as latitude and departure of that line joining the preceding and point under consideration. So such coordinate are known as consecutive coordinate. ये definition हमको याद रखनी है, यानी B पॉइंट के जो L cos थीटा L sin थीटा जो है कोऑर्डिनेट है वो ए बी लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर है और उसी को बोला जाता है कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। तो C पॉइंट के लिए क्या है, BC लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट है, डी पॉइंट के लिए सी डी लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट है। तो इस प्रकार से जो स्टेशन है उसकी पिछली जो लाइन है वो लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर बोले तो वो स्टेशन का कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, रिमेंबर।
तो हर जगह के हर स्टेशन का हम लोग कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस प्रकार से। यानी बी पॉइंट का मैं कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा चाहिए। और एल साइन थीटा एल कॉस थीटा क्या है, ए बी लाइन का लैटिट्यूड डिपार्चर है। फिर बी सी लाइन का मुझे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बी सी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल लो, तो वो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सो इन दैट वे ये हर एक स्टेशन का लैटिट्यूड डिपार्चर यदि आपने निकाल लिया तो वही हमारा होता है कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। अब ये कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट है, लेकिन हमको विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट नहीं चाहिए। हमको कोऑर्डिनेट ऐसे चाहिए वो कॉमन ओरिजिन से हो। तो यदि हम लोग ऐसे कॉमन ओरिजिन से यदि कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। यानी मैं अभी यहां पर एक ओरिजिन मान लेता हूं, यहां पर 0 0 का 0,0 का, और फिर ये ए स्टेशन का मैं लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालता हूं, तो वो होगा मेरा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। फिर बी स्टेशन के लिए भी मैं इतना बड़ा लैटिट्यूड और ये डिपार्चर हो जाएगा। फिर सी के लिए इतना बड़ा लैटिट्यूड और इतना बड़ा डिपार्चर हो जाएगा, और ये डी के लिए इतना बड़ा लैटिट्यूड और डिपार्चर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लैटिट्यूड और डिपार्चर विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन भी निकाल सकते हैं हम लोग। सो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दैट इज टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो अब हमको थियोडाइट ट्रैवर्स प्लॉट करने के लिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और उसके लिए कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे। यानी कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस पे से आप फिर कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और फिर उसी से आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अब हमको ये याद रखना है कि यदि कोई भी ट्रैवर्स हमारा क्लोज होता है, तो इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया, सो सम ऑफ द लैटिट्यूड इन क्लोज ट्रैवर्स इज ऑलवेज 0। जैसा हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दिखाया कि वह सम ऑफ द फोर्सेस acting at a point they are always 0. So like way the sum of the departure at any closed traverse is always 0. So latitude की सम भी 0 होती है और डिपार्चर की सम भी 0 होती है। ये हमको ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है कि कैसे हम लोग लैटिट्यूड डिपार्चर का कैलकुलेशन करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब इस प्रकार से समझ लो हमने लैटिट्यूड और डिपार्चर को कैलकुलेट किया, तो हमारा रूल क्या बोल रहा है, क्योंकि आप ए बी सी डी ऐसा ट्रैवर्स में आपने सर्वे किया, तो आप ए से स्टार्ट किए, बी सी डी ऐसा जाके ए पर वापस आ गए, तो आप तो ओरिजिनल जगह पे आ गए, तो इसलिए आपके लैटिट्यूड बढ़ गया था, फिर कम हो गया, फिर से 0 आ गया। नेट सम ऑफ द लैटिट्यूड 0 आ गई, सम ऑफ द डिपार्चर भी 0 आ गई। लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लाइन की लंबाई ऑब्जर्व करते, उसका बेयरिंग ऑब्जर्व करते, फिर एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेट करते, और जब पूरे चारों सब लाइन का करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर की टोटल 0 नहीं आती। इसका मतलब आपके लैटिट्यूड डिपार्चर में क्या आ गई, एरर आ गई। तो ये एरर हमको एलिमिनेट करते आनी चाहिए। अब ये एरर यदि एलिमिनेट करना है तो हमको फिर करेक्शन, ये एरर कितनी है वो करेक्शन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास में 3 अलग अलग रूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सो वेन एवर देर इज ए एरर इन द क्लोज टावर, लैटिट्यूड डिपार्चर की टोटल 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब लैटिट्यूड डिपार्चर में आपकी एरर आ गई, तो वो एरर आपको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए अलग अलग 3 रूल आप यूज़ कर सकते, जैसा कि हमने कंपास ट्रैवर्स में लगाया था बॉडविच रूल। तो बॉडविच रूल में करेक्शन आपको निकालना है हर एक लाइन का, तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, यानी लाइन ए बी और उसके बाद में टोटल पेरीमीटर और इनटू टोटल क्लोजिंग एरर, यानी ये टोटल एरर इन द लैटिट्यूड डिपार्चर, यानी ये क्लोजिंग एरर हो गई हमारी। कितनी एरर आ गई हमारी, तो वो एरर को लाइन के पेरीमीटर के हिसाब से हर एक लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। सो व्हेन द टोटल एरर इन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एरर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर एंड साइड ऑफ द लाइन, सो दैट इज एक्चुअली द बॉडविच रूल। तो बॉडविच रूल से करेक्शन निकालने के लिए ये फार्मूला हमको याद रखना है, लेंथ ऑफ द साइड डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स इनटू टोटल एरर इन द लैटिट्यूड डिपार्चर। तो आपको हर एक लाइन का करेक्शन निकलेगा। सो दिस इज करेक्शन फॉर एवरी लाइन। तो ये हो गया हमारा बॉडविच रूल।
यदि आप इससे नहीं कर सकते तो फिर दूसरा रूल है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट रूल। जनरली थियोडोलाइट ट्रैवर्स में हम लोग ट्रांजिट रूल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको हर एक लाइन का यदि करेक्शन निकालना है, हर एक लाइन की लंबाई में करेक्शन हो सकता है, तो वो करेक्शन कैसा करेंगे? तो लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन, जो लाइन का लैटिट्यूड है और उसको डिवाइड बाय सम ऑफ द लैटिट्यूड। ये सम जो है ये टोटल सम है अपनी, इसके अंदर अरिथमेटिक साइन कंसीडर नहीं करना है, टोटल सम है और इनटू टोटल एरर इन द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। यानी टोटल एरर इतनी थी, उसके हमने हर एक लैटिट्यूड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हर एक लाइन के अंदर। तो ये हो गया आपका ट्रांजिट रूल, लाइन का करेक्शन निकालने के लिए, लेंथ का करेक्शन निकालने के लिए। और इस प्रकार से और एक रूल है थर्ड रूल। तो थर्ड रूल में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नॉर्थिंग और साउथिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये हो गया हमारा टोटल क्लोजिंग एरर, यानी टोटल ऑफ द लैटिट्यूड डिपार्चर, टोटल एरर हो गई। ये टोटल एरर को हमने नॉर्थिंग ऑफ द पर्टिकुलर साइड डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ द नॉर्थिंग, तो इसके प्रमाण में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये आपका हर एक लाइन का करेक्शन निकलेगा लेंथ के अंदर। सो बाय यूजिंग बॉडविच रूल और ट्रांजिट रूल और थर्ड रूल, we can distribute the total error in the latitude and departure in each survey line। तो हर एक लाइन के लंबाई के अंदर हमको करेक्शन करना पड़ेगा। तो जब हर एक लाइन की लंबाई करेक्ट करेंगे तब जाके जब आप लैटिट्यूड डिपार्चर निकालेंगे तो टोटल सम ऑफ द लैटिट्यूड डिपार्चर 0 आएंगे आपके बराबर। यानी आपने ड्राइंग को प्लॉट करने के पहले ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही आपके लैटिट्यूड डिपार्चर का करेक्शन लगा के ट्रैवर्स को बराबर क्लोज कर लिया। So that is the concept in the theodolite traversing, that we have to eliminate the error in the length of the survey line by using latitude and departure concept or by using Bordwich rule, transit rule और third rule। तो जनरली कंपास सर्वे में हम लोग बॉडविच रूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग थियोडोलाइट सर्वे में ट्रांजिट रूल का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे लैटिट्यूड और डिपार्चर का इस्तेमाल करके हम लोग करेक्शन निकाल सकते हैं और हर एक लाइन की लंबाई करेक्ट कर सकते हैं। सो इन दैट वे वी हैव टू यूज दिस फार्मूला फॉर कैलकुलेशन एंड बेस्ड ऑन दिस देन वी कैन मेक द प्रॉपर करेक्शन। तो हमारा लेंथ का करेक्शन आ जाएगा, हमारा एंगल का भी करेक्शन आ जाएगा, और फिर वो लेंथ और एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रैवर्स को ड्राइंग शीट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस theodolite traversing in this lecture। In the next lecture again we will go with the very interesting point, that is problem based on the latitude and departure। इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है और फिर उससे हम लोग किस प्रकार से ट्रैवर्स बनाने के लिए डाटा हमारा प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।